बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाई हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइटेटिक्स 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। These are class agreements as per usual practice. If we abide these agreements, the lecture will be smooth and hopefully it will be more fruitful. This is the roadmap. In this lecture, we will have a little bit background followed by food acceptance in illness. And we all know that food acceptance is affected during the illness and negatively it is affected. Similarly, what happens with the nutritional content or body composition in case of illness? So illness also affects the nutrition. Nutritional assessment in clinical setting is just like a normal nutritional assessment with a little bit modifications because maybe the individual will be hospitalized. Then we will discuss the atherogenic nutrition. Atherogenic malnutrition is basically uh, is malnutrition caused by the illness and especially during the medical treatment. Then we will discuss the therapeutic diets and how these are planned and what are their types. And in types, we will also see uh, modification with respect to consistency. Either these are liquid diets, and in case of liquid, they can further be divided into clear liquid or full liquid diet. Similarly, they can be softened, and sometimes they are called mechanically soft diets because the individual is unable to uh, break down the diet properly. Uh, they also have different types, which we will discuss later, and we will also see the impact of connective tissues, flavor, or use of spices, beverages, and nutrient content uh, regarding the during the modification of normal diets. The last component will be related to the tube feeding, and normally the route of intake is mouth, but due to some health issues, maybe the individual is not capable of taking the uh, diet or nutrient through the normal oral route. So we used tubes to deliver the nutrients towards the stomach through nasal cavity. So maybe it is known as NG feeding, nasogastric feeding, and sometimes we have to deliver the nutrients by passing the stomach as well directly into the ileum. So uh, the after the addition of bile juice and pancreatic juice, the digestion can be further the digestion process can be completed, and afterwards the food can be absorbed. Similarly, sometimes the individual is not capable to handle food through any means, either oral intake or through the use of tube feeding. So we use the intravenous feeding. The nutrients, pure nutrients in the form of amino acids, in the form of fatty acids, they are delivered to the patient through intravenous system. So this is known as a TPN. Lastly, we will see the home care of patients. For example, if individual uh, has chronic type issues and continuously the requirement of tube feeding is there, so maybe it will be economical and it will be wise to take care the patient at home, and no doubt some sort of expertise will be required to handle such patients.
जी, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी अब बैकग्राउंड की बात करेंगे। डाइट थेरेपी क्यों चाहिए? डाइट थेरेपी इज बेसिकली द यूज ऑफ फूड एज अ टूल इन द रिकवरी फ्रॉम इलनेस। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच होगी और हमें नेगेटिव जो हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं वो कम से कम होंगे। ऑप्टिमम क्वांटिटी अगर आप न्यूट्रिएंट्स की लेंगे, बैलेंस प्रोपोर्शन में लेंगे, तो ना तो अंडरवेट का प्रॉब्लम आएगा, ना ओवरवेट का इशू होगा, ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, ना किसी न्यूट्रिएंट की हाइपर लेवल होने के चांसेस हैं। तो ये है जब हम प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं। लेकिन नेक्स्ट फेज क्या आती है कि इंडिविजुअल जब आप किसी बीमारी का शिकार हो गया, इलनेस से सफर कर रहे हैं, उस वक्त फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेनली टू ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन क्या है कि हम उसकी रिकवरी करना चाहते हैं इलनेस से, कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है। और सिमिलरली ड्यूरिंग इलनेस उसका जो कह लें कि न्यूट्रिशनल लॉसेस होते हैं, उसकी बॉडी जो डाउन साइड पे जाती है, उसको भी हम कोप अप करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो क्विक हो जाए, वो जल्दी जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो लौट आए। So diet therapy is basically the use of appropriate food as a tool in the recovery from illness. In some illnesses, the patient's diet complements the medical or surgical treatment. और आपको पता होगा कि लेट्स के अगर किसी बंदे की सर्जरी की जाती है, उसको ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बाद फिर उसको हम कहते हैं जी आप इसको यखनी या ब्रॉथ जो है ना वो दें, ताकि इसका जो प्रोटीन और क्वालिटी प्रोटीन आने की वजह से इसका हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सके। तो यहाँ पे जो डाइट है ना उसका रोल क्या हो जाता है कि वो मेडिकल को कंप्लीमेंट करती है, यानी सपोर्ट करती है ट्रीटमेंट प्रोसेस को। तो दवा जो है ना उसके साथ साथ डाइट जब शामिल हो जाएगी तो फिर पेशेंट की रिकवरी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिकवरी विल बी मोर। However, it depends upon the acceptance and intake of the prescribed diet. यानी एक बंदे को डॉक्टर कह के चला गया या डाइटिशियन कह के चला गया कि आपने ये वाली चीज खानी है और आपका रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो है उसको वो लाइक नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता या उसको यूज नहीं करता, सो अल्टीमेटली द रेट ऑफ रिकवरी विल बी लो। सो इट chiefly depend upon the individual, आइदर वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है और इसका इनटेक कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं कि जहाँ पे डाइट को एज अ टूल जब हम यूज करते हैं तो उससे रिकवरी का प्रोसेस जो है वो क्विक हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओवरवेट, ओबीज और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट करें तो उनकी रिकवरी के चांसेस और उनके जो हेल्थी लाइफ गुजारने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ये थेरेप्यूटिक डाइट है क्या? थेरेप्यूटिक डाइट कोई नई चीज नहीं है। दिस इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट। यानी बाय डिफॉल्ट जो इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म है हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर हो, वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब उसमें डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, अगर कोई न्यूट्रिएंट जो है उसको कम करना है, किसी न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करना है, डाइट की कोई फिजिकल फॉर्म के अंदर को मॉडिफिकेशन करनी है, तो इस तरह की चीजें जो है वो उसमें हम करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल जो डाइट है ये उसका कह लें कि डिटो कॉपी होनी चाहिए जो थेरेप्यूटिक डाइट है। और थेरेप्यूटिक डाइट के अंदर विद सम रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, उसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को भी पूरा करना चाहिए। और आपको पता है कि आरडीएस जो है ना वो एज स्पेसिफिक भी हैं, ठीक है। जिस एज से इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से उसकी हमने आरडीए को मीट करना है या एक्सीड करना है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी केयर ये करनी है कि उसकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड रहे। तो बेसिक जो 5 फूड ग्रुप्स हैं उनको इसके अंदर जरूर एड्रेस करना चाहिए। तो जस्ट हम रिकैप करेंगे ये जो आरडीए का कंसेप्ट है और बेसिक 5 फूड ग्रुप्स का कंसेप्ट है, because you have already well aware about these terminologies. तो आरडीए जो है ये डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं।
तो मैं इसमें सिर्फ अभी फोकस करूंगा आरडीए के ऊपर। तो दिस इज बेसिकली एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल that is sufficient to meet the nutrient requirements of nearly all, and all means almost 97 to 98% healthy individuals who are in a particular life stage and gender group. तो यहाँ पे दो तीन मैसेजेस हैं। नंबर वन ये कि आरडीए जो है ना, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स को ज़हन में रख के स्टैब्लिश की गई हैं। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उस वक्त हम आरडीए को मीट करेंगे एटलीस्ट, या फिर उसको एक्सीड करेंगे। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है कि ये ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन के अंदर जो है ना वो सेफ वैल्यूज जो है वो स्टैब्लिश्ड है न्यूट्रिएंट्स की, और डेली बेसिस पे होती हैं, और ये लाइफ स्टेजेस के हिसाब से हैं। मीन्स के इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलिसेंट्स, अडल्ट्स, ओल्ड एज वन, मेल फीमेल, और जेंडर स्पेसिफिक जब हम बात करेंगे तो इसमें मेल फीमेल का भी फैक्टर जो है उसको जहन में रखा जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की आरडीए जो है ना वो आपके साथ शेयर की है। तो लेट्स अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है ये जेंडर वाइज देखें तो ये मेल फीमेल में इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफर करेंगी, और सेकंड नंबर पे हम इसकी फिजियोलॉजिकल एज की बात करें तो उस हिसाब से भी इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफर करती हैं। तो मैं जस्ट आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अब इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं 19 टू 50 एडल्ट वंस के अंदर आप आ जाते हैं। तो इसमें अगर कोई मेल है तो उसकी 8 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आयरन की रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई फीमेल है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप देखेंगे हायर साइड पे है, क्योंकि इनके जो लॉसेज हैं, ब्लड लॉसेज जो हैं वो भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली दे हैव मोर रिक्वायरमेंट फॉर द आयरन। In case of pregnancy, which is another physiological stage, the requirements of iron are even more, and they will be 27 rather than 18 milligram per day. अब एक और वैल्यू यहाँ पे हम यूज करते हैं जो हमें फूड लेबल्स के ऊपर मिलती है, जो हम मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं प्रोसेस फॉर्म में, तो उसके ऊपर परसेंट डेली वैल्यू लिखी होती है। तो इन केस ऑफ आयरन द परसेंट डेली वैल्यू इज 18 मिलीग्राम। अगर कमर्शियल लेवल पे हम देखें तो उसमें फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या मेल के लिए प्रोडक्ट है या फीमेल के लिए। वहां पे कमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से परसेंट डेली वैल्यू जो है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफाइन की गई है। तो आयरन की अगर आपसे परसेंट डेली वैल्यू पूछी जाए तो वो 18 मिलीग्राम है, और अगर हम उसको आरडीए के हिसाब से बात करेंगे तो फिर ये जेंडर स्पेसिफिक भी है और एज स्पेसिफिक भी है। सेकंड में बात कर रहा था कि हमें फूड को डिफरेंट फूड ग्रुप से जो है ना वो स्वैप करना है। तो चाहे किसी पेशेंट की आप डाइट जो है वो डाइट प्लान बना रहे हैं तो यू विल आल्सो गो फॉर दी सेम 5 फूड ग्रुप्स। अब 5 फूड ग्रुप्स जो है इनको मैं ब्रॉडली अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूँ तो ये सीरियल कैटेगरी आ जाती है, स्टार्च का सोर्स आ जाता है, और इसी तरह ऑलमोस्ट 33% जो है वो फूड के अंदर इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसी के इक्वल तकरीबन इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शेयर आ जाना चाहिए, और इसके साथ साथ मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव यानी प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स है, और इसी तरह फिर डेयरी में भी डेफिनेटली प्रोटीन प्लस कैल्शियम इसमें हमें मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 15% जो है वो इसका प्रोपोर्शन होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द स्टाफ जो है वो फैटी एंड शुगरी फूड्स हो सकती हैं। इसमें भी हमें नेचुरल की तरफ जो है वो हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कम्पेयर टू एडेड फैट एंड एडेड शुगर्स। अब ये 5 ग्रुप्स में से फूड को सिलेक्ट करने का पर्पस क्या था कि जो स्टार्ची फूड्स हैं दे गिव अस एनर्जी, जो कि बॉडी का फ्यूल है, और इसकी बेस पे हम डे टू डे एक्टिविटीज और हमारी बॉडी जो है वो रन करती है, सेल्फ मेंटेनेंस उसकी होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें चाहिए बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर एज वेल, एंड दीज थिंग्स कीप अस हेल्दी। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको ये रेगुलेट करती हैं, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, हार्मोन्स, उनको ये असिस्ट करती हैं। डेयरी जो है ना ये भी डाइट का कंपोनेंट होना चाहिए, और अगेन इसमें अगर कोई इंडिविजुअल ओवरवेट वाली साइड पे है तो उसमें वो लो फैट ऑप्शंस की तरफ जा सकता है।
डेयरी प्रोडक्ट्स को क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम हमें पता है कि इससे हमारी बोन्स जो हैं, और स्केलेटन हमारा जो है वो बेसिकली कैल्शियम फास्फोरस के ऊपर ही मेनली कंसिस्ट करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें डेयरी प्रोडक्ट्स देती हैं। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम नहीं लेंगे या ये फूड हम नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो स्केलेटन है या जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। प्रोटीन डिफरेंट फार्म्स में अवेलेबल है, इसके एनिमल सोर्सेज भी हैं, प्लांट सोर्सेज भी अवेलेबल हैं पल्सेस की फॉर्म में, एंड इट इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स मसल्स टू ग्रो एंड रिपेयर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस बच्चों में ज्यादा होता है तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर भी जाके वियर एंड टीयर मेंटेनेंस, इस पर्पज के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होती है। आपके एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। तो अल्टीमेटली अगर एंजाइम्स और हार्मोन्स ये बॉडी में नहीं होंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और सारी रेस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। फैट जो है ये भी एक वाइटल कंपोनेंट है, जिसमें अब हेल्दी फैट्स की जो है वो ज्यादा बात की जाती है, बिकॉज ऑल फैट सोर्सेज आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। Fat helps basically, it provides the cushioning and protection to the body organs, as well as it is a source of fat soluble vitamins which will not be available if the intake of fat is restricted. फिर आपका अगर सेलुलर लेवल पे जाएं तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें फैटी एसिड्स हैं उसका लाजमी कंपोनेंट है, तो सर्वाइवल या जो इंडिविजुअल का जो सस्टेन करना है वो पॉसिबल नहीं होगा अगर उसकी डाइट में भी फैट को जो है वो टोटली एलिमिनेट कर दिया जाए। हाँ, अब जिस जिस तरह के हेल्थ इश्यूज जो है ना वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ अ पर्टिकुलर फूड और फूड ग्रुप्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिर टैकल करने के लिए भी सॉल्यूशंस जो हैं वो अब अवेलेबल है। थेराप्यूटिक डाइट मेन पॉइंट इसमें मैंने ये कहा है कि भाई इसमें हमने 5 फूड ग्रुप्स को भी ध्यान में रखना है और इसमें हमने आरडीए को भी ध्यान में रखना है। आरडीए के बारे में मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि it should meet or exceed the dietary allowances of a normal person, because the aim of diet therapy of a patient is to maintain the health and help the patient to regain nutritional well-being। जो उसके losses हो चुके हैं उनको हमने किसी तरीके से अब cover up करना है। In some ailments it may be necessary to restrict intake of calories. For example, in case of weight reduction, we will recommend low calorie diets, and in some health issues we will restrict the intake of some nutrients as well, like sodium in case of hypertension or heart ailments। तो मॉडिफिकेशन जो है वो ये बाज दफा बड़े लेवल पे भी होगी और बाज दफा जो है ना वो एक नैरो लेवल पे जस्ट एक आध न्यूट्रिएंट को जो है ना वो मॉडिफाई हमने करना होता है। नॉर्मली आप समझते हैं कि अगर एक बंदा हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई साइड पे रहता है, उसको हम कहते हैं कि भाई आप कैल्शियम का इंटेक जो है ना वो लोअर साइड पे रखें। जी, नेक्स्ट हमारा इसमें कंपोनेंट है फूड एक्सेप्टेंस इन इलनेस। डेफिनेटली किसी ना किसी लाइफ स्टेज पे हम लोग जो हैं वो इस प्रोसेस में से गुजर चुके होते हैं। एटलीस्ट फीवर का प्रॉब्लम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अक्सर रहता है। इन्फेक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट टाइप के आप फीवर यहाँ पे आप वर्ड सुनते हैं, तो हमने देखा होगा कि उस स्टेज पे हमारा खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इलनेस जब भी होगी तो हमारा जो डिजायर है भाई या इंटरेस्ट है फूड को खाने का वो कम हो जाता है, और उसकी रीजंस होती हैं क्यों कम हो जाता है कि हमारी एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। मेडिकेशन लेने की वजह से बंदे का दिल नहीं करता, उसके टेस्ट बड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब उसको किसी इवन जो उसकी फेवरेट फूड है उसमें से वो बंदा जो है ना वो अपने कह लें कि टेस्ट जब ड्राइव नहीं कर पाता तो उसकी डिजायर ही खत्म हो जाती है खाने पीने की। बाज दफा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेट्स के जी अगर किसी को डायरी है तो फिर वो बंदा ना उसका वो स्पाइसी फूड खाना और
पेट भर के खाना, वो इस तरह की चीजों को अवॉइड करेगा कुछ अर्सा के लिए, ताकि उसकी हेल्थ जो वो बेहतर हो सके। और बाज दफा अगर हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं ना खाने के बाद, खाना तो हम इसलिए खाते हैं कि वी वांट कंफर्ट, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट के एलिमेंट हो, खाने के बाद बंदा ऐसे फील हो कि जैसे डिस्टेंशन हो गई है, गैस प्रोडक्शन हो गई है, या वॉमिटिंग के चांसेस हैं, या नोजिया का इंडिकेटर हो रहा है, तो इंडिविजुअल बाज दफा कम जो है ना फिर वो खाने की तरफ शिफ्ट होगा। सेकंड जो है इसमें एक रीजन ये भी होती है, ड्यूरिंग इलनेस वी हैव रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ वैसी एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, एंड इफ समवन इज रिटेन टू द बेड, तो बेड पे चले जाने से फिर उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स उसकी कम हो जाएंगी, और इसी के हिसाब से उसकी एपिटाइट जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसी तरह ड्रग्स का इन्फेक्शन होता है, जब हम ड्रग्स लेते हैं तो इससे भी हमारा मेनली जो सेंसरी ऑर्गन्स में, अगर इसके हम टंग की बात करें, टेस्ट बड्स की बात करें, तो वो अफेक्ट होते हैं, और उससे हमारा जो फूड का सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। तो अभी हमने बात की है कि इलनेस की वजह से हमारा फूड का इंटेक जो है, वो फूड की एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। सेकंड में ये कहता हूँ कि बाज दफा इलनेस के साथ कुछ स्ट्रेसर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि बंदा बीमार तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से वो मजीद कह लें कि फूड से एनाय हो जाएगा, फूड का इंटेक जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। एक इसमें क्या आता है भाई, अल्टर टाइमिंग ऑफ ईटिंग। रेगुलरली आप, हो सकता है कि आप ब्रेकफास्ट, आप डिनर, लंच, इसके दरमियान में स्नैक्स, इस तरह का आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जब इंडिविजुअल होगा तो बाज दफा हो सकता है कि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई फलां टेस्ट करवाने और ये फास्टिंग के साथ होने हैं, तो उस इंडिविजुअल को फिर वो खाना पीना उस ड्यूरेशन के लिए मना हो जाता है। तो अल्टर्ड जो टाइमिंग है ना ईटिंग की, वो भी बाज दफा ये एक टेस्ट करवाते टाइम लग गया, मील का टाइम वो रेगुलरली 1 o'clock के लंच करता था, 3 o'clock हो गया, तो जब टाइमिंग चेंज होगी ना, तो उससे भी फूड की जो एक्सेप्टेंस है वो डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा बाज दफा बंदा एनॉय फील करता है कि उसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जब वो हॉस्पिटलाइज होता है। बाज दफा वहाँ पे जो उसकी मूवमेंट करवाई जाती है डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाज दफा वेटिंग टाइम जो है ना वो उसको प्रॉब्लमेटिक है। फियर और का एलिमेंट भी हॉस्पिटल में ज्यादा होता है, फियर ऑफ टेस्ट होता है, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो बाज दफा इंडिविजुअल कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वहाँ पे तो किसी टाइम भी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो विजिट कर सकता है। इसके अलावा एंजाइटी का एलिमेंट जो है हॉस्पिटल्स में ज्यादा होता है, और अगर तो कोई प्राइवेट रूम के अंदर रह रहा है तो वहाँ पे तो एलिमेंट कम होगा, लेकिन अगर वार्ड के अंदर एक इंडिविजुअल है तो वहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स जो है ना उनकी सफरिंग्स की वजह से बाज दफा उनका जो शोर शराबा है, उनकी जो तकलीफ है, या आप इमेजिन करें कि एक वार्ड में अगर 10 लोग हैं और वहां से एक की डेथ हो जाती है उस दिन, तो वो बंदा बाकी पेशेंट जो वो भी एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, फियर का एलिमेंट आ जाएगा, और कम से कम उस दिन के लिए उनका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो अगर आपसे भाई ये पूछा जाए कि कौन से फैक्टर्स जो है फूड की एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो आपने ये तरतीब से ये चीजें लिख देनी है। इलनेस को कौन अफेक्ट करता है, और स्ट्रेसर्स को, स्ट्रेसर्स कौन से हैं जो अल्टीमेटली वो भी एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब इन स्ट्रेसर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसमें एक जो अटेंडेंट होता है पेशेंट के साथ, उसका रिलेटिव है, वो इसमें हेल्प आउट कर सकता है। वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है या केस मैनेजर जो उस केस को डील कर रहा है, तो बाज दफा उनकी इंटरवेंशन से इन चीज़ों को किसी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ पेशेंट को ज़रूर रियलाइज करवाएं कि भाई ये इस जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो ना, इसमें जो चीज़ आपको सबसे अच्छा कंफर्ट दे सकती है ना, वो आपकी फूड हो सकती है। तो अगर आपने फूड जो है ना उसको ही खाना पीना उसका कम कर दिया, तो अल्टीमेटली कंफर्ट का एलिमेंट जो है वो कम से कम होता जाएगा।
थर्ड हमारा कंपोनेंट जो था इस टॉक के अंदर वो था कि हाउ इलनेस अफेक्ट्स द न्यूट्रिशन, यानी बंदे के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसे डिस्टर्ब होता है जब वो किसी बीमारी का शिकार होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली पेशेंट जो है ना उसकी इनटेक डिस्टर्ब हो जाता है, इनसफिशिएंट फूड इनटेक हो जाता है। और उसकी रीजन क्या होती है, अभी हमने जिक्र किया था कि उसकी एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, बाज दफा पेन की वजह से या फियर की वजह से वो फूड का इंटेक जो है वो कम कर देते हैं। और जब फूड का इंटेक कम होगा बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो अल्टीमेटली उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो लोअर साइड पे चला जाएगा। न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन भी बाज दफा अफेक्ट होती है। इनटेक अगर ठीक भी है और उसकी एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर नहीं हो पाती, लेट्स इन केस ऑफ डायरिया, और सीवियर डायरिया है कि जिसमें जो खाया पिया वो थोड़ी देर के बाद बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह माल न्यूट्रिशन जो है उसमें भी एब्जॉर्प्शन जो है वो सीवियरली अफेक्ट होती है। डिहाइड्रेशन जो है इसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक रीजन तो ये हो गई कि भाई इनटेक डिस्टर्ब हो गया, दूसरी रीजन ये होगी कि उस इंडिविजुअल की एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से फाइनली दे आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी। थर्ड एलिमेंट इज द थेरेप्यूटिक मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट्स। नो डाउट हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं कि जो उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन हमने करनी है वो इस तरीके से हो कि मिनिमम टू मिनिमम उसके अंदर हम चेंजेस करें, और उसमें हम पेशेंट की चॉइसेस को भी जहन में रखें, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम जहन के अंदर रखें। लेकिन स्टिल क्योंकि मॉडिफिकेशन है भाई, हॉस्पिटल के अंदर कुछ ना कुछ इसमें हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स की तरफ से। तो अल्टीमेटली हम फिर कह सकते हैं कि इसमें स्टिल जो है ना मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो डाइट इतनी पैलेटेबल नहीं होगी, अल्टीमेटली उसकी वजह से भी उसका इनटेक जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो अब ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिनकी वजह से इंडिविजुअल की जो डाइट है बेसिकली वो अफेक्ट होती है, और अल्टीमेटली फिर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है ना वो अफेक्ट होता है। अब इन चीजों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी भी है भी। फूड एक्सेप्टेंस कैन बी मॉडिफाइड बाय डिस्कशन विद द पेशेंट, और पेशेंट की डिस्कशन जो है उसमें आप उसको रियलाइज करवाएं कि भाई ये चीज जो है वो आपकी फेवर में है, आपका रिकवरी प्रोसेस बेहतर होगा, एंड यू विल बी गो बैक टू योर होम एज वेल एज टू योर वर्क एंड फ्रेंड्स, अगर आप बेहतर हो गए जल्दी। अदरवाइज हॉस्पिटल में ये आप मजीद प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। फीवर के केस में स्पेशली देखा जाए तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, सिंपली हम BMR कहते हैं। उसकी वजह से फॉर ईच डिग्री इंक्रीज इन नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि 10% जो है ना वो BMR इंक्रीज कर देगा। लेट्स के अगर 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल की, तो 10% मीन्स कि 200 उसको एडिशनल चाहिए। अगर वो 2200 नहीं लेगा तो वो अल्टीमेटली उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो लोअर साइड पे जाना शुरू कर देगा। Nutrient utilization is also adversely affected in metabolic syndromes. अब यहाँ पे मैं सिंड्रोम का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो सिंड्रोम जो है ना ये बेसिकली क्लस्टर ऑफ कंडीशंस के लिए वर्ड यूज होता है, यानी ये एक डिजीज नहीं होती इस इंडिविजुअल को। डिजीज वो होती है जिसमें वेल डिफाइंड सिम्टम्स होती हैं। सिंड्रोम में वो एक से ज्यादा इश्यूज का शिकार हो जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, और उसी बंदे को हाई शुगर का भी लेवल उसका हो जाए, उसका फैट लेवल जो है वो भी बॉडी का, जिनको हम सीरम प्रोफाइल कहते हैं, HDL, LDL, TC, TG, ये डिस्टर्ब हो जाए, तो अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से अफेक्टेड है। उसकी न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो भी बड़ी सीवियरली अफेक्ट होती है, क्योंकि एक डाइटरी चॉइस दूसरी हेल्थ इश्यूज को जाना वो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रही होती है, तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना वो ज्यादा जाना पड़ता है। पेशेंट की बाज दफा जो मूवमेंट है वो, जैसे मैंने कहा ना कि अगर वो कन्फाइन हो गया बेड तक या व्हील चेयर तक, तो अल्टीमेटली ड्यू टू लेस मूवमेंट उसके लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन और कैल्शियम ये बढ़ जाते हैं।
सो अल्टीमेटली अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को RDA के हिसाब से मीट या एक्सीड नहीं करेंगे तो ज्यादा लेटर फेज पे वो ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ एलिमेंट आज के हवाले से अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, और स्पेशली हम क्लिनिकल सेटिंग के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि इंडिविजुअल जो है ना उसको हम टाइमली उसका स्टेटस जो है उसको ट्रैक कर सकें, और उसके जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं या उसके जो लॉसेस हो रहे हैं उनको किसी तरीके से कोप अप कर सकें। तो स्पेशली जब कोई बीमार होगा तो उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना चाहिए। इसमें ABCD जो आप नॉर्मल करते होते हैं भाई, इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, उनसे भी हमें कुछ आइडिया हो जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट करना चाहिए, डाइटरी असेसमेंट करना चाहिए, और हमें जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हैं, लेबोरेटरी मेजरमेंट्स हैं, उनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। कंप्लीट असेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। किसी एक की बेस पे जो है ना वो हमें कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज ये है कि अगर हम इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की जो असेसमेंट है, अगर कोई बीमार है तो उस वक्त तो ये जरूरी हो जाएगी, लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग के लिए करना चाहते हैं और हम थोड़ा सा अर्ली लेवल पे देखना चाहते हैं कि कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे, तो उसके लिए फिर बाज दफा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो उसको पूरा कर देती है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें हम BMI मेजर करते हैं, और BMI के अंदर हमें हाइट और वेट जो है वो दो चीजें चाहिए होती हैं। और इसी तरह हमने ट्राइसेप स्किन फोल्ड एंड समटाइम अदर स्किन फोल्ड्स, ट्राइसेप टेस्ट जो है ना, इनका मकसद भी डिपेंड करता है ये कौन सी लोकेशन पे हम कर रहे हैं। तो अगर हम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस देख रहे हैं तो फिर हम उसमें हमारा देखना होता है कि प्रोटीन के लॉसेस नहीं हो रहे, मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही। और इसी तरह अगर हम बेली एरिया में इस टेस्ट को यूज करते हैं तो वहां पे फिर हम फैट का जो है ना वो स्टेटस देखना चाह रहे होते हैं कि ये आइदर ये लोअर साइड पे जा रही है या एक्सेसिव साइड पे तो नहीं जाना शुरू हो गई। तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे एलेबोरेट करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ कोर्स विद द नेम ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन द सेकंड सेमेस्टर। आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। BMI जो है ये रेशियो है भाई, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो सिंपली यू नीड टू वैल्यूज, आपने वेट इंडिविजुअल का लेना है और उस इंडिविजुअल की हाइट जो है ना उसको आपने मेजर करना है, और इसकी बेस पे आपने BMI की तरफ चले जाना है। BMI में अगेन वही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। इसको हम देख लेते हैं कि इसके कंपैरिजन हम किससे करेंगे या स्टैंडर्ड इसके लिए क्या यूज होता है। तो BMI क्लासिफिकेशन में 4 पैरामीटर्स आ जाते हैं। अगर वैल्यू जो है वो 18.5 या इससे कम हो तो फिर हम अंडरवेट का वर्ड यूज करते हैं। और डेफिनेटली जब अंडरवेट इंडिविजुअल है तो फिर उसके हिसाब से उसकी हमने जो डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है वो मे बी हम प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ाएंगे, मे बी हम कैलोरीज जो है ना उनको इन्हांस करेंगे, ताकि उसकी प्लस या सरप्लस साइड पे वो जाएगा तो फिर उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल वेट की तरफ लौटेगी। इसी तरह नॉर्मल वेट जो है इसमें वी हैव द रेंज फ्रॉम 18.5 टू 24.99। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल को नॉर्मल वेट कहा जाता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि वैल्यूज जो है वो अगर आप 18.5 की तरफ आपकी वैल्यूज होंगी तो यू आर स्टिल at the risk of underweight, and if your values are more inclined towards the higher level, means 24.99, so you have more chances of becoming obese and overweight sooner or later. तो इसमें भी हमें ये नॉर्मल रेंज जो है ना इसमें मैं तो कहूँगा कि 20-22 की रेंज जो है वो ज्यादा फिर इसमें सूटेबल है। ओवरवेट जो है इसमें 25 से लेकर 29.99 तक, या आप 30 तक कह सकते हैं भाई वैल्यू अगर आती है तो हम इसमें। तो यहाँ पे अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ना करेंगे और डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर हेल्थ इश्यूज जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर जब आप खुदा न खास्ता आ जाएंगे तो फिर उसमें डिजीज को मैनेज करना जो है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा।
सेकंड इसके अंदर स्किन फोल्ड मेजरमेंट आ जाती है। अभी स्किन फोल्ड मेजरमेंट जैसे मैंने बोला है कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सी लोकेशन पे आप कर रहे हैं। तो लेट्स से ये अगर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस है तो इसमें आप पहले तो ये हाइट जरूर देखें ना कि वाकई ये टॉप और ये जो एल्बो है यहाँ से इसका मिड वाला पोर्शन पहले आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद ये बैक साइड आप देख रहे हैं भाई, वहां से आपने मसल्स को इसकी मेजरमेंट लेनी है। और इसमें एक तो हम हमारे पास स्पेशली डिजाइंड मेजरिंग टेप्स हैं जिनके थ्रू कट ऑफ वैल्यूज भी वहाँ पे डिफाइन है और उसके हिसाब से हम इसको मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर डिफरेंट टाइप के आपको ये कैलिपर अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप मसल्स को देख सकते हैं। और इन केस ऑफ बेली एरिया अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको तो डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, इनको हम कैसे असेस करते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, और इंडिविजुअल का यहाँ पे देखें उसको मार्क किया जा रहा है और उसके बाद उसकी मेजरमेंट ली जा रही है। सेम इज द केस विद द किड्स, सिमिलरली विद सम ओल्ड इंडिविजुअल। और यहाँ पे आप स्किन फोल्ड टेस्ट जो है ना वो भी बाज़ दफ़ा हम इसको पिंच टेस्ट भी कहते हैं, हम अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के थ्रू भी इसको असेस कर लेते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट की बात करें तो इसमें हमने एग्जामिनेशन करना है ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखने होंगे, आईज, टीथ, गम्स, टंग, स्किन, हेयर। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर्स के पास आपने विजिट किया होगा जब कभी, तो उन्होंने इस तरह की आंखों का कलर वो देखते हैं, ठीक है, स्किन का कलर देखते हैं, और इससे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की सिम्टम्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेस्ट बड़ा क्विक होता है भाई, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास डिफाइंड किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, तो सब्जेक्टिव में बेसिकली ओपिनियन दी जा सकती है और ये वेरी कर सकता है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक बंदा जितना एक्सपीरियंस्ड है वो साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि बाज दफा एक जो साइन एंड सिम्टम है वो कई बीमारी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, कई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वो यहाँ पे अगर हम मिसलीडिंग की तरफ हो जाएंगे ये किसी एक ही बेस पे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इसके लिए ज्यादा क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें जितना कोई एक्सपीरियंस्ड होगा इंडिविजुअल उतना ही वो बेनिफिशियल होगा।